the gracious, the merciful. I warm welcome all student, participant, and follower in our online channel, the ESL Academy by Sarrana. Today we shall discuss Russian writer, playwright, and short story writer, Anton Chekhov. English mostly call him Anton Chekhov. So Anton Chekhov, he was born in Russia, Jan 17, 1860, and he was died in Germany, 1904. Anton Chekhov wrote short story. He started his career as a story writer, and he wrote many short story, and mostly in comedy. He was well prominent due to his story writer, and later he joined as a playwright, and he wrote most prominent four plays. The Seagull, please write it down. In his later life, when there was 8 years remaining in his death, he wrote four good plays, and that got international prominence. So that was well known all over the world. The Seagull, 1895. Please write it down. Before I'll spell it for you. SEA, the Seagull, GUL, Seagull, the Seagull, 1895. Uncle Vanya, VANYA, Uncle Vanya, 1897. The Three Sister, 1901. The Cherry Orchard, 1904. So he wrote well prominent four plays, and that got posthumous fame. Posthumous mean after his death. Posthumous mean after his death. When he was died, he got fame. So these four plays got fame after his death. Anton Chekhov also got admission in medical college, and he completed medical degrees as well, and he practiced as you could say in medical field. And he used to say, he said that medical is his lawful wife, while literature is his mistress. Anton Chekhov said that medical is his lawful wife, while literature is his mistress. In English, mostly in English and countries like Russia, they call mistress their girlfriend. Meant to say that wife is, you could say, legal. When you get marriage, it is a legal agreement between two people. But the thing is that when you've got a girlfriend, it is not a legal one. It is just like a mistress, and mostly in European country, they have 4, 5, and 6 mistresses, and they are just running affair like this. And so he's saying that medical is his field, while he adopted just like a mistress other like literatures. तो लिटरेचर को वो कंसीडर करते थे कि जस्ट लाइक अ मिस्ट्रेस है, और इसमें इनका एक पैशन था, एंड ही रोट मैनी शॉर्ट स्टोरी, एंड you know that he got some tragedies. And Cherry Orchard, when we discuss Cherry Orchard, we learn certain thing that it is a reflection of his life, because he wrote this in the same year he died. उसी साल में लिखा है 1904 में, जब इनकी डेथ हुई है जर्मनी में. और इसके अंदर हम ये फील करते हैं कि ये अपनी रिफ्लेक्शन देते हैं लाइफ की. मीन टू से इनकी अर्ली, जब ये किसी टाउन में रहते थे रशिया के नज़दीक,
तो इनके साथ एक ट्रेजेडी हुई थी कि इनका अपना घर जो था, एक इनकी मदर के फ्रेंड थे बहुत करीबी, उन्होंने वो डिस्ट्रॉय कर दिया था, पुल डाउन कर दिया था उसको, ख़रीद के उसको बाद उसको नॉक डाउन कर दिया था। तो बिल्कुल इसी तरह चेरी ऑर्चर्ड के साथ भी ऐसे होता है कि उनका जो रेनवस्काई का जो अपना उनका एक फ्रेंड होता है लोफाकिन, वही उसको डिस्ट्रॉय करता है, चॉप डाउन करता है या उसको क्या करता है, कट डाउन करता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे उसका अपना घर बिल्कुल गिरा दिया गया था उनकी मदर के फ्रेंड की तरफ से। तो सेम थिंग वी फाइंड इन चेरी ऑर्चर्ड। इन चेरी ऑर्चर्ड विल सी वेदर Cherry Orchard is a comedy or tragedy. We'll see the theme of Cherry Orchard. We'll also discuss characterizations in Cherry Orchard. We'll discuss the story of Cherry Orchard. So today we are going to discuss a lot of things related to Anton Chekhov's. First of all, we discuss whether Cherry Orchard is a comedy or tragedy. First director who directed in Russia. First director who directed this play in Russia, he considered Cherry Orchard as a tragedy, while Anton Chekhov himself said he wrote as a comedy. So look at the difference between two people opinion, that the person who is writing, he's saying that I have written as a comedy, but the director is directing it as a tragedy, because it is showing tragedy of people like they are aristocratics and they are just showing their deterioration and their destructions. They are showing their downfall and what is happening once they were very happy and after that they are selling their property. It is just like a tragedy. The director, he directed it as a tragedy, but he claimed that he wrote as a comedy. तो एंटन चेखोव जो एक मॉडर्न राइटर हैं और बड़े सेंसिबल, बड़े एक्टिव, बड़े इंटेलिजेंट राइटर हैं जिन्होंने मोस्टली शॉर्ट स्टोरी कॉमेडी फॉर्म में लिखी हैं, वो कहते हैं कि मैंने इसे एज अ कॉमेडी लिखा था, लेकिन डायरेक्टर ने इसको डिस्प्ले किया, इस तरह डायरेक्ट किया कि इसको कॉमेडी, इसको ट्रेजेडी शो किया, और जिसने इसको पढ़ा नहीं है वो इसे यही समझता है कि ये एक ट्रेजेडी है। चेरी ऑर्चर्ड एक बहुत बड़ा चेरी का एक बाग है, गार्डन है, बहुत बड़े रकबे में है, और उसका क्या है, डाउनफॉल हुआ है और उसको क्या बेच दिया गया है। अरिस्टोक्रेटिक उसके लैंडलॉर्ड थे, उसके ओनर थे, और कभी उनकी क्या थी, उनकी वाह थी, उनका एक नाम था, उनका एक स्टेटस था। और फिर जो सर्फ हैं, जो बॉन्डेड लेबर्स हैं, वो सारे जो लेबरर्स हैं वो सारे अपने एक मिडिल क्लास में आते हैं, मिडिल क्लास से अपर क्लास में वो एक बहुत बड़े क्या बन जाते हैं, एक माफिया बन जाता है। कौन से लोग? वो जो कभी वर्किंग क्लास थे, वो जो बॉन्डेड लेबरर्स थे, उनको कहते थे सर्फ, ये कहते थे। अच्छा, 1861 में अलेक्जेंडर II जो हैं वो रशिया के किंग बनते हैं, लिख लें 1860, हाँ जी 18 अलेक्जेंडर II लिख लें। अलेक्जेंडर II जो हैं वो रशिया के किंग बनते हैं, उन्होंने रशिया को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। He brought revolution in Russia, that all the land, it belongs to rich people like the landlord. They are having property on that rich land. जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है उसको क्या डिवाइड कर दिया जाएगा गरीबों में, और जितने भी बॉन्डेड सर्व्स हैं, जितने भी बॉन्डेड लेबर्स भी थे, उनको आज़ाद कर दिया जाए। पहले क्या था कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो थी वो यानी सेंचुरी से वो सर्व करती आ रही थी अमीर लोगों को, और वो बॉन्डेड थे, उनको कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं, वो नहीं थी। जैसे आपके होते हैं ना, जैसे किसी के फैमिली नौकर होते हैं, उनके दादा भी नौकर थे, उनके बाप भी नौकर हैं, वो खुद भी नौकर हैं। तो इसी तरह वो ऐसे सर्व करते आ रहे थे। तो जब अलेक्जेंडर II आता है तो अलेक्जेंडर II ने आके सारे रशिया को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उसने कहा कि जितना भी बैकवर्ड एरिया ना उसको हम डेवलप करेंगे, बैकवर्ड रशिया को हम डेवलप करेंगे। तो उस दौरान जो बड़े बड़े चेरी ऑर्चर्ड थे, बड़े बड़े बागात थे लोगों के, बहुत उन्होंने रकबे को घेर रखा था अमीर लोगों ने, उस सारे के ऊपर या तो उसने इतने टैक्स लगा दिए या फिर उनको डिवाइड कर दिया गरीबों के दरमियान। तो
और इसी तरह उसी की लपेट में चेरी ऑर्चर्ड भी आ जाता है। तो वो जो कभी सर्व हुआ करते थे, वो बॉन्डेड लेबर हुआ करते थे उन्हीं के, किसके, मैडम रेनवस्काय के। कभी वो उसके नौकर हुआ करते थे उनकी फैमिली के, उनके वही चेरी ऑर्चर्ड संभालते थे, वही उसको खरीद के फिर काटते हैं उसके सारे ट्रीज को। तो इसमें एक सिंबल है कि सोशल चेंज कैसे आया है, नेचर को कैसे कट डाउन किया गया है, नेचर को कैसे बचाना चाहिए, नेचर को हम कैसे काट रहे हैं, कैसे उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। राइटर की अपनी लाइफ का भी थीम है इसके अंदर, उसने अपनी रिफ्लेक्शन भी दी है कि उसका अपना भी घर ऐसे गिरा दिया गया था, उसको कट डाउन कर दिया गया था, चॉप डाउन कर दिया गया था। तो इसके अंदर बहुत सारे थीम आपको मिलकर सोशल चेंज का, जैसे मैंने बताया कि अलेक्जेंडर 2 आए हैं 1861 में, ये राइटर की बर्थ से 1 साल बाद में आया है। कौन? अलेक्जेंडर 2। अलेक्जेंडर 2 ने आके पूरे रशिया को रिफॉर्म किया। अमीर जो हैं वो गरीब हो गए हैं, अब वो डाउनफॉल आ गया। और 19वीं सेंचुरी तक जब ये 1904 में इसने लिखा है, वो सारा कुछ उसके माइंड में है, कैसे वो कभी अमीर हुआ करते थे, फिर वो डाउनफॉल आया, उनको अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचनी पड़ी, कैसे वर्किंग क्लास ने यानी उन्होंने ऐसे जंप किया और वो ऊपर आ गए, किसके? अरिस्टोक्रेटिक क्लास के, लैंडलॉर्ड के, और वो जितने अमीर लोग थे उनके बराबर आगे खड़े हो गए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदना शुरू कर दिया। कैसे रशिया के अंदर चेंज आ गया, कैसे रशिया ने रशिया को मोनोपोलाइज कर दिया, कैसे उसको रिवोल्यूशनाइज कर दिया। और उस वक़्त के बादशाह का भी रोल है, उसके हिस्ट्री का भी रोल है, राइटर ने सब कुछ देखा है, चीज़ों को चेंज होते देखा है। तो वो डायरेक्टर ने जब इसको थॉरली देखा, इस ड्रामा को, इस प्ले को, तो उसने कहा कि ये तो एक ट्रेजेडी है। उसने उसको ट्रेजेडी डायरेक्ट किया। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा प्ले था जिसको एज ए कॉमेडी लिखा गया था लेकिन उसे एज अ ट्रेजेडी डायरेक्ट किया गया। तो आप लिखेंगी ड्रामा कौन सा? चेरी ऑर्चर्ड। लिखा कब गया? 1904 में। किसने लिखा? एंटन शेकोव ने, रशियन राइटर ने, एंटन शेकोव ने, और 1904 में लिखा। डायरेक्टेड एज अ ट्रेजेडी बाय द डायरेक्टर, फर्स्ट टाइम रशिया के अंदर थिएटर के अंदर इसको एज अ ट्रेजेडी डायरेक्ट किया। 4 एक्ट प्ले है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ये आपको मैंने बताया कि अर्ली शॉर्ट राइटर थे और कॉलेज लाइफ के अंदर ही इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ लिखनी शुरू कर दी। ठीक है, कौन सी मैगज़ीन? एक मैगज़ीन स्पेक्टेटर मैगज़ीन, एक मैगज़ीन था, उसमें ये लिखते थे अपनी शॉर्ट स्टोरी स्पेक्टेटर्स में। स्पेक्टेटर एक मैगज़ीन थी जो शाया होती थी कहाँ पे? रशिया के अंदर। और वहाँ पे इन्होंने ऐसा शॉर्ट स्टोरी राइटर इन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया, उसके अंदर वर्क किया, आहिस्ता आहिस्ता कुछ प्लेस भी लिखे। वो कोई इतने रिफाइंड नहीं थे, लेकिन जो इसने लेटर लाइफ में जब 8 साल रहते हैं इनकी डेथ में, उससे पहले जो इनकी हेल्थ जो है वो बुरी तरह मुतासर होती है। फिर यहाँ से ये जर्मनी चले जाते हैं, जर्मनी में अपना इलाज करवाने के लिए या कुछ ट्रीटमेंट के लिए वहाँ जाते हैं, लेकिन ये वहाँ भी रिकवर नहीं होते। वहाँ पे 1904 में आखिरकार इनकी डेथ हो जाती है। राइटर बोर्न इन रशिया, when he was born in January 17, 1860 and he was died in Germany July 1904। और 1904 में ही चेरी ऑर्चर्ड को इन्होंने लिखा है। चेरी ऑर्चर्ड जो है, चेरी ऑर्चर्ड बहुत अच्छा प्ले है, इसके अंदर मॉडर्न एक थॉट है, मॉडर्न ट्रेजेडी है। अच्छा, अर्ली जितनी भी ट्रेजेडीज़ थी, उन ट्रेजेडीज़ के अंदर क्या करता है राइटर? शो करता है डाउनफॉल एक करैक्टर का। ठीक है, और वो उससे डाउनफॉल उसका किस तरह होता है कि उसके अंदर एक ट्रेजिक फ्लॉ है, वो उसका डाउनफॉल किस बात बनता है। और थ्रू आउट द जो ड्रामा है वो सफ़र करता है राइटर, जो उसका प्रोटैगनिस्ट है। इसके अंदर हम देखेंगे कि सोशल जो चेंजेस हैं वो ट्रेजेडी का बायस बन रही हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि जब ट्रेजेडी आती है तो इसका जो हीरो है, जो इसका प्रोटैगनिस्ट है, वो उसके अंदर से तलाश करता है सॉल्यूशन कि मैं इस ट्रेजेडी से कैसे निकलूं। उसके अंदर जो हमने क्लासिकल ट्रेजेडी पढ़ी, अरिस्टोटल की डेफिनेशन के मुताबिक जो हमने पढ़ी, उसके अंदर हमने क्या देखा है? उसके अंदर राइटर लिखता है, लेकिन जो उसका प्रोटैगनिस्ट है वो सफ़र करता है, अल्टीमेटली ही इज डाइड। बट ओवर हियर यू सी दैट द मैडम रेनवस्काय, शी सफर्ड एंड her son is died and her husband is died. And what happened? She went to France over there to get relief. She's finding the solution of the tragedy.
Over here, character is finding the solution of the tragedy. Protagonist is finding the solution of the tragedy. There is something different from the classical tragedy. It's a modern tragedy. ये आपने नोट करना है कि मॉडर्न ट्रेजेडी कुछ और है, क्लासिकल ट्रेजेडी कुछ और है. क्लासिकल ट्रेजेडी में क्या होता है कि राइटर जो है, जो उसको इस तरह फॉर्म करता है, उसकी फॉर्मेशन इस तरह करता है कि एक उसके अंदर हमेर्शिया है, एक ट्रेजिक फ्ला है, वो उसको डाउनफॉल की तरफ लेके जाता है. थ्रू होल्ड द प्ले एक सफ़र करता है, प्रोटैगनिस्ट अल्टीमेटली डाइड, और उस पर पिटी और फियर क्रिएट होता है. हियर वी सी द प्रोटैगनिस्ट इज सफरिंग, बट प्रोटैगनिस्ट और कैरेक्टर are finding the solution of the tragedy. What happened to them and how they are going to get solution. They started finding solution. They are getting solution and ultimately they find solution. कैसा solution जी? उसकी बेटे की डेथ हुई, हस्बैंड की डेथ होगी, फ्रांस चली गई, फ्रांस से फिर वापस आती है वापस, और उसके बाद फिर ट्रेजेडी होती है कि चेरी ऑर्चर्ड बिक जाता है. बहुत कोशिश करती है क्या कि इररिस्पॉन्सिबल है, अरिस्टोक्रेटिक है, अपना वही जो एटीट्यूड है उसको कंटिन्यू रखती है, उसको कॉप विद नहीं कर पाती, उसको मैनेज नहीं कर पाती सारी सिचुएशन को. अल्टीमेटली वंस अगेन गेट ट्रेजेडी एंड वेंट बैक टू फ्रांस, और फिर वापस चली गई. तो ये ओवरऑल डिफरेंस है क्लासिकल ट्रेजेडी और मॉडर्न ट्रेजेडी में. और शेखव, एंटन शेखव जो एक मॉडर्न राइटर है, ही गिव न्यू लुक to tragedy, and he is writing such a tragedy in which protagonist is finding the solution of tragedy, and she even offered her daughter as well to Lofokin, that you should get married to Lofokin, said after get married you can even leave Lofokin. अब लोफोकिन जो एक सर्फ है, बॉन्डेड सर्फ है, वो बहुत अमीर हो गया है, वो एक लैंडलॉर्ड बन गया है, बहुत सारी प्रॉपर्टी उसने खरीद ली है, ठीक है, वो एक ट्रेडर बन गया है, वो प्रॉपर्टी को ख़रीदता है, तो इस तरह बहुत सारी वो बिज़नेस भी करता है, तो उसका एक नाम है सोसाइटी के अंदर. तो वो अपनी डॉटर को भी ऑफ़र करती है कि तुम इससे शादी कर लो. लोफाकिन से कहती है कि तुम इससे लोफाकिन से शादी कर लो, और फिर उस बाद में भले छोड़ ही देना इसको. अच्छा, अब हम स्टडी करेंगे, हम ज़रा स्टडी करते हैं कि ये इसको नाम क्या क्या दिया है, यानी डिफरेंट राइटर्स ने इसको नाम क्या क्या दिया. इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ज़रा नोट कर लें. ये 17 जनवरी 1860 में पैदा हुए रशिया में, जुलाई 1904 में. ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि ताकि आपको याद रहे. 1904 में जर्मनी में इनकी डेथ हुई है. एंटन शेखव इनका नाम है, और इनके फादर जो थे वो एक स्मॉल शॉपकीपर थे. साउदर्न पार्ट ऑफ रशिया में एक छोटा सा टाउन था, घर था इनका, वहाँ ये रहते थे स्मॉल टाउन के अंदर. ग्रैंडफादर एक बॉन्डेड सर्फ थे. लिख ले, बॉन्डेड सर्फ वो होते हैं बॉन्डेड लेबर, जो बॉन्डेड लेबर करते हैं, जो फैमिली जो है सर्व करते आ रहे हैं, किन की, अरिस्टोक्रेटिक लोगों की, लैंडलॉर्ड्स की, फ्यूडल्स की. समझती हैं बात को? हाँ जी, उनको कहते हैं बॉन्डेड सर्फ. ये रशिया के अंदर थे. तो उसके बाद ये बॉन्डेड जो सर्फ्स थे, इनके फादर जो ग्रैंडफादर थे, ये उनके ग्रैंड सन थे किसके, बॉन्डेड सर्फ के. और वही चीज़ें हम इसके थीम के अंदर भी देखते हैं. अच्छा, he joined writing because he want to pay his medical college fee. मेडिकल कॉलेज की फ़ी देने के लिए उन्होंने he started writing short story, and he was having passion to write story. He was when you are interested in something you can do lot of hard work. जब आप किसी काम में इंटरेस्टेड हो, मैं पहले भी बताता हूँ, आप पैशन है आपके पास, आप उसके लिए जज्बा रखते हो, तो you will never ever feel tired for this. तो ये उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करते थे, शॉर्ट स्टोरी लिखते थे ताकि अपनी मेडिकल कॉलेज की फ़ी जमा करवा सकें. उसके बाद आगे देखिएगा, जब ये 20 साल के हुए, ही गॉट जॉब इन फेमस मैगजीन नोन एज स्पेक्टेटर. उसका नाम था स्पेक्टेटर. उसके लिए लिखना शुरू कर दिया जब 20 साल के हुए. 90% शेखव्स के जो वर्क है वो 28 ईयर ओल्ड जब थे इन्होंने लिखा है.
when he was 28-year-old he wrote 90% his work. यानी जब 28 साल के हुए तो इन्होंने 90% वर्क अपना लिखा है. और उसके अलावा 28 ईयर में ये एक एस्टेब्लिश्ड लीडिंग राइटर बन गए थे. यानी 28 साल में ही वॉज एस्टेब्लिश्ड लीडिंग राइटर. जो उनका प्राइमरली जो वर्क है वो शॉर्ट स्टोरी राइटर था एज ए. लेटर इन्होंने कुछ प्लेज भी लिखे लेकिन इतना नाम नहीं पाया. जब 8 साल इनकी डेथ से 8 साल पहले he was when there was 8 year remaining in death he wrote most prominent plays. तो most prominent plays जो लिखे हैं वो यानी अपनी डेथ से 8 साल की एज के दौरान लिखे हैं. when he was about to die and he wrote even चेरी ऑर्चर्ड जो 1904 में लिखा है इन्होंने, जिसमें अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस भी बताए हैं. अच्छा, इनसे जो लोग मुतासर थे जिन्होंने इनको एडमायर किया, लिख लें. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसको फर्स्ट टाइम एडमायर किया. जो फर्स्ट एडमायर जो इनको एडमायर करने वाले हैं वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है. लिख लें, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने पहली दफ़ा इनको एडमायर किया. उसके अलावा वर्जीनिया वुल्फ ने इनको एडमायर किया. उसके बाद कैथराइन मैन्सफील्ड ने इनको एडमायर किया. जेम्स जॉयस ने इनको एडमायर किया. ये राइटर्स जो थे ये इनको एडमायर कर रहे थे कि ही इज़ अ गुड राइटर, ही इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब. कैथरीन मैन्सफील्ड, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, इन्होंने इनको बड़ा एडमायर किया है ये कि बहुत अच्छे राइटर हैं. ठीक है, और इन्होंने अच्छा लिखा है. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो हैं वो पहले हैं इनको एडमायर करने वाले. बाकी मैंने नाम लिखवा दिए हैं कि कब इन्होंने क्या लिखा है. जो इनके मेजर प्ले हैं वो लिखवा दिए हैं. आगे और लिखें. एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अच्छा, चेरी ऑर्चर्ड जो है इन्होंने ट्रिब्यूट टू हिमसेल्फ, ये उन्होंने अपने लिए ही अपने आप को ट्रिब्यूट किया है. क्योंकि इनकी, जैसे मैंने बताया कि इनका अपना एक घर था, बहुत खूबसूरत था, उसमें बहुत सारे ट्रीज़ भी थे. ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी थी, ट्रीज़ भी थी. उनको कट डाउन किया गया. इनके जो मदर के फ्रेंड्स थे उसने ही इसको गिराया, उसको पुल डाउन किया, दरख्तों को काटा. तो बिल्कुल इसी तरह का थीम जो है वो इसके अंदर भी अभी मैं डिस्कस करूँगा, आपको मिलेगा. चेरी ऑर्चर्ड प्ले को डिफरेंट जो क्रिटिक्स हैं, डिफरेंट जो लिटरेरी राइटर्स हैं, उन्होंने डिफरेंट नाम दिए हैं. ज़रा लिख रहे हैं. इसको कॉमेडी भी कहा गया है. इट इज़ नोन एज कॉमेडी, ट्रेजेडी, पेस्टोरल कॉमेडी, और उसके बाद इसको ड्रामा भी कहा गया है, थिएटर पोएम भी कहा गया है, और चिकोवियन कॉमेडी भी कहा गया है. ये लिख लें, मैं फिर बता देता हूँ ये क्या चीज़ें हैं. 4 एक्ट प्ले है जी. इसको बहुत सारे लोगों ने इसको डिफरेंट नाम दिए हैं. यानी डिफरेंट writers have given different names to चेरी ऑर्चर्ड. चेरी ऑर्चर्ड को कहते हैं ये तो कॉमेडी है. जैसे वो पहले ही जब डायरेक्टर से बात हुई तो डायरेक्टर ने ही उसको एज ए डायरेक्ट कर दिया ट्रेजेडी, इसको एज ए कॉमेडी. यानी पहला ही जो डायरेक्टर है उसने इसको एज ए ट्रेजेडी डायरेक्ट कर दिया. अच्छा, दूसरे जो उसे कहते हैं ये कॉमेडी है. कॉमेडी मीन कि इसमें जो रियल लाइफ है उसमें राइटर्स को बहुत सारा सीरियस इशू चल रहा है. चेरी ऑर्चर्ड बिक रहा है और वो साथ ही क्या कर रही है, वो साथ ही एक बाल एक सजा रही है, एक महफिल सजा रही है. बहुत सारे लोग आ रहे हैं, डेट्स पे जा रही है, और वो वाइन और शराब और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, डेट्स चल रही हैं. So that shows different thing. Mean to say that very serious issue is going on, but the characters they are busy in strange and cynical things. तो वो बड़ी cynicism और बड़ी absurd और बड़ी different situation में involve हो जाते हैं character के. बड़ा serious issue. For example, आपसे किसी से कोई कहे कि यार आपको शादी कर लेनी चाहिए, वो साथ ही आगे कह रहे कि आपकी जेब में जो पेन है वो बड़ा खूबसूरत है. तो इस तरह बड़ी डिफरेंट सिचुएशन के बड़ा सीरियस इशू चल रहा हो तो उसके ऊपर वो कुछ और ही करने लग जाते हैं कैरेक्टर्स. तो बड़ा एक डिफरेंट लुक के साथ पहली दफ़ा ये चीज़ एंटन शेकोव ने अपने इस प्ले के अंदर शो की. यानी इसको कॉमेडी भी है, इसके अंदर ये ट्रेजेडी भी लगता है. पेस्टोरल कॉमेडी.
अच्छा, पेस्टोरल का मतलब होता है रिलेटेड टू शेफर्ड, रिलेटेड टू विलेजियर लाइफ। तो इसके अंदर जो विलेज की जो पेस्टोरल सीन्स हैं, ठीक है, वो आप देखोगे कि इसके अंदर बागात और इसके अंदर आपको दरख्त और ट्रीज़ ये चीज़ें दिखाई गई हैं। तो उसका एक सीन है। उसके बाद इसको ड्रामा भी कंसीडर किया जा सकता है। थिएटर जो है, पोएम है कि थिएट्रिकल पोएम में बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे कोई पोएम होती है। उसके बाद शिकोवियन जो कॉमेडी दीगर उसने कॉमेडीज़ लिखी हैं उसी की तरह की एक कॉमेडी है। इसमें गन जो है वो मोस्टली जितनी भी कॉमेडीज़ वो शो कर दिखाता है तो उसमें वो गन शो करता है। तो इसमें गन शो की गई है लेकिन वो फायर नहीं होती, कि जैसे वो बहुत सारे लोग खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं लेकिन करते नहीं हैं। उसके बाद जी यानी क्रिटिक्स ने, जैसे मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट नेम्स उसको दिए हैं, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कैसे लिखा गया है। ये 5 मंथ में ये प्ले लिखा गया है, यानी इसकी जो सेटिंग है उसमें 5 मंथ आपको शो किए गए हैं। और ये स्टार्ट कब होता है? ये आपको स्टार्ट होगा आपका यानी अगस्त में ये एंड होता है। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट मई से ये स्टार्ट होता है, मई जून जुलाई अगस्त, ऑलमोस्ट 4-5 मंथ की सेटिंग है इसके अंदर, ठीक है। अब ज़रा करैक्टर को ज़रा देख लें, मैं करैक्टर को आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके अंदर आपको जैसे मैंने बताया कि जो सर्व्स हैं, जो बॉन्डेड लेबर्स हैं, जो बॉन्डेड लेबर्स जितने भी हैं वो आज़ाद हो गए हैं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वो इतने डेवलप हो गए हैं कि वो अब अरिस्टोक्रेटिक्स लैंडलॉर्ड्स की ज़मीनें ख़रीद रहे हैं, उनकी ज़मीनों के साथ कारोबार कर रहे हैं। वो जो कभी मालक हुआ करते थे वो बिल्कुल डिसऑन हो गए हैं, उन्होंने अपनी चीज़ें बेच दी हैं, या तो वैसे उनको उन्होंने डिवाइड कर लिया है, या वो बिक गई हैं, या वो उनका मॉर्टगेज वगैरह जो पे करना था उन्होंने, या उन्होंने वो जो उनकी जो अय्याशियाँ थी, जो लक्ष्रियस लाइफ थी वो ख़त्म हो चुकी है। सारे वो देखें, जो जितने भी मिडिल क्लास होते हैं दे आर फाइंडिंग मनी, दे आर इन सर्च ऑफ मनी। मिडिल क्लास के लोग मोस्टली जो उनको नाम दिया कि दे आर फाइंडिंग मनी, whatever direction and whatever way they find, they have to find money. They are not having so much money and they need to find money. मिडिल क्लास हमेशा काविश करती है कि वो ज़्यादा मैक्सिमम दौलत हासिल करे। तो इसमें जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, वो अपर क्लास के बराबर आ गए हैं, वो अरिस्टोक्रेटिक्स के बराबर आ गए हैं, वो फ्यूडल्स के बराबर हो रहे हैं, वो लैंड लॉर्ड्स के बराबर हो रहे हैं। और उन्होंने मेहनत की, और जबकि उनकी लक्ष्रीज जो हैं वो दिखाई गई हैं कि उन्होंने अपने आप को कैसे तबाह कर लिया है। अब मैं आपको कुछ करैक्टर्स बताऊंगा, वो काइंडली नोट डाउन कर लें। करैक्टर थोड़े से मुश्किल हैं, उनके नाम थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, आप क्योंकि ये रशियन है तो मैं आपको तब भी लिखवा देता हूँ, आप उसको नोट कर लें। अच्छा, पहला करैक्टर है इसके अंदर, हाँ जी, चले मैं लिखवा दूंगा। 1904 में लिखा गया। अच्छा, इससे आइडलिक, ये लिखे आइडलिक लाइफ, ये थोड़ा सा ये लफ्ज़ आइडलिक का मतलब समझती हैं, IDYLLIC, आइडलिक। आइडलिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली प्लेजेंट, सिंपल, पीसफुल, लविंग, आइडलिक। तो जो लबोव, इसको ना लेडी लबोव भी कहते हैं। लबोव जो है बेसिकली ये लव का एक लव से निकला है। तो ये जो लेडी है ये बेसिकली बड़ी रिनाउंड है रशिया के अंदर, और लविंग है और सेक्सुअल है, अट्रैक्टिव है, जिसका नाम है लेडी मैडम रेनव्स्काय। इसका ये जब ये प्ले स्टार्ट होता है तो ये कहाँ से आ रही है? ये फ्रांस से वापस आ रही है। वहाँ इसका जो अब्यूसिव लवर है उसने उसको धोखा दिया है, उसको सब कुछ इससे लूट लिया है, और ये वहाँ से वापस आ रही है। जब ये गई थी, देखें इसमें बड़ी बहुत सारी चीज़ों को वो एज अ रीडर पे छोड़ता है कि वो इसको अंडरस्टैंड करें। अब यहाँ पे देखिए ये वापस आ रही है कहाँ से? फ्रांस में इसके साथ धोखा हुआ। वहाँ पे जो इसका लवर था फ्रांस के अंदर, उसने उसको क्या किया? धोखा दिया है, इसको डिसीव किया है, इससे सारी दौलत जो है वो भी छीन रही है, उससे बिल्कुल लुटा के आई है। और ये बड़ी जेनरस लेडी है, लविंग है, सेक्सुअल है, अट्रैक्टिव है, और उस मॉडर्न जो सिंबल है, मॉडर्न सोसाइटी की एक सिंबल है। अब जब ये यहाँ से गई थी, इसके बेटे की डेथ हो गई थी,
और इसके हस्बैंड की डेथ होगी, बेटा उसका डूब गया था, हस्बैंड की इसकी डेथ हो गई थी, और ये यहाँ पे ये ट्रेजिडी हुई इसके साथ, तो ये उसको फेस ना कर पाई, यहाँ से देखा सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे करैक्टर क्या है, मॉडर्न ट्रेजिडी में सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। कहाँ पे चले गए, फ्रांस में चली गई है। अब ये वहाँ से वापस आ रही है, प्ले स्टार्ट होता है। रैनम स्काई जनरस लेडी है, लविंग लेडी है, अट्रैक्टिव लेडी है, सेक्सुअल लेडी है, अफेयर्स भी हैं, डेट्स भी हैं, और ये सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है जी। अरिस्टोक्रेटिक की सिंबल है, अरिस्टोक्रेसी को जाहिर करती है, पॉपुलर है, पॉपुलर फिगर है। और इसका सन जो है उसकी डेथ हो गई है, फादर जो है सॉरी जो हस्बैंड है उसकी भी डेथ हो गई है। अब ये फ्रांस से वापस आ रही है, ये तो एक करैक्टर है। दूसरा करैक्टर है लोफाकिन। ये रैनम स्काई के स्पेलिंग लिख रहे हैं RANEVSKY, रैनम स्काई, ठीक है जी। दूसरा करैक्टर है लोफाकिन, LOPAKIN, लोफाकिन। लोफाकिन एक मर्चेंट है, ठीक है, और एक बाउंडेड लेबर जो था उसका बेटा है, और नो ही इज वेल रिनोन्ड मर्चेंट एंड लैंडलॉर्ड। ये कोई अमीर नहीं था, इसका जो फादर था वो एक सर्व था, और वो किसके घर काम करता था, इसी चेरी ऑर्चर्ड के अंदर एरिस्टोक्रेटिक जो लेडी है इनके घर ही काम करता था, इनका फैमिली सर्वेंट था। तो नो ही इज एंजॉइंग द हाई पोजीशन, he is enjoying the high position because he purchased many land and he is doing business and he is well renowned merchant now. और ये किससे, एक बर्बरा लिख लें, BARBARA, बर्बरा। एक बेटी है रैनम स्काई की, एक अडॉप्टेड बेटी है, अडॉप्टेड डॉटर है, उसका नाम है बर्बरा, BARBARA, बर्बरा। यानी बर्बरा बेटी है किसकी, अडॉप्टेड बेटी है रैनम स्काई की। और उसकी दूसरी बेटी है, ये 24 ईयर ओल्ड है लिख लें, और इसका अफेयर चल रहा है किसके साथ, लोफाकिन के साथ, जो कि एक मर्चेंट है। और ये एक्सपेक्ट करती है कि वो चाहती है कि वो उसको प्रपोज करे, तो वो दिल में उसके लिए कुछ रखती है जज्बात, लेकिन वो चाहती है, वो कहती है कि यानी इसको खुद प्रपोज करना चाहिए मुझे। और उसकी माँ भी कहती है, जो रैनम स्काई है, रैनम स्काई कहती है कि इसको खुद प्रपोज करना चाहिए, और फिर उसे ये मशवरा भी देती है कि तुम चलो इससे शादी कर लो, उसके बाद भले इसे छोड़ ही देना। किसको कह, अपनी अडॉप्टेड बेटी को कह रही है उसको। अच्छा, उसके बाद ये तो आपको बता दिया। दूसरा लिख ले अन्या। अन्या जो है ANYA, अन्या जो है रैनम स्काई की बायोलॉजिकल डॉटर है, उसकी अपनी बेटी है, और ये 17 ईयर ओल्ड है, ठीक है। ट्रॉफीमोव्स जो है ये इनका, ये ट्यूशन पढ़ाने आता है, ये एक टीचर है, स्टूडेंट है पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल लाइफ पे कमेंट भी करता है, और ये बड़ा एक यूटोपियन वर्ल्ड में रहता है। ट्रॉफीमोव इनके घर आता है, और ये मसलसल जो राब्ते में है किसके, अन्या के साथ, और अन्या के साथ इसका अफेयर चल रहा है, ये इसको लाइक करता है। और पहले इसके घर ट्यूशन पढ़ाने आता था इसके बेटे को, उसके बाद उसकी डेथ होगी, लेकिन कंटिन्यूसली इनके घर आना जाना है उसका, और ही फेल इन लव विद अन्या, तो अन्या से प्यार करता है ट्रॉफीमोव। तीसरा करैक्टर है ट्रॉफीमोव, यानी चौथा करैक्टर है ट्रॉफीमोव, लिख लें TROFIMOV, ट्रॉफीमोव जो है एक पॉलिटिकल स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और जिसको लोफाकिन कहता है कि तुम जो है ना परपेचुअल स्टूडेंट हो, यानी हमेशा के स्टूडेंट ही हो, यूटोपियन वर्ल्ड में रहते हो, एंड यू आर द परपेचुअल स्टूडेंट। एंड लोफाकिन इज अ मटेरियलिस्ट, ही इज़ अ मैन ऑफ प्रैक्टिकल। लोफाकिन जो है वो प्रैक्टिकल मैन है, और जबकि ये यूटोपियन वर्ल्ड में रहता है, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहता है, एक आइडियलिज्म में रहता है, और अपनी एक पॉलिटिकल सोच रखता है। तो ये बोथ आर डिफरेंट। और ये किसका, वो उसका लवर है अडॉप्टेड बेटी का, ये किसका है, जो बायोलॉजिकल उसकी बेटी है रैनम स्काई की, ठीक है जी, ये हो गया। और उसके अलावा एक फ़र्ज़ है,
लिख लें FIRS, फर्ज। फर्ज जो है ये 87 ईयर ओल्ड सर्वेंट है, ये मैन सर्वेंट है, और एजिंग एक्सेंट्रिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, सिनिसिज्म है, स्ट्रेंज है, और ये पुरानी लाइफ को ही लाइक करता है, कहता है कि हमें सर्फ ही रहना चाहिए था, हम बॉन्डेड लेबर जो अच्छे थे, ये जो अलेक्जेंडर सेकंड ने हमें आज़ाद कर दिया है या ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे दी हैं, ये अच्छा नहीं किया, हम ये चेरी ऑर्चर्ड में हमेशा रहना चाहता है और कहता है मैं हमेशा इनका सर्वेंट ही रहूं। ये फैमिली सर्वेंट नहीं जैसे होते हैं, वो बहुत सारे सर्वेंट वो फैमिली का हिस्सा ही बन जाते हैं और वो सदा वो यही चाह रहे होते हैं कि हम ऐसे ही इनको सर्व करते हैं इस फैमिली को। तो ये बिल्कुल ऐसी कंडीशन में है। समझ आ गई? तो ये फ़र्ज जो है 87 ईयर ओल्ड एक्सेंट्रिक एक मैन है, 87 साल ओल्ड है, और एक सिंबॉलिक करैक्टर है और फॉरगटन करैक्टर है। इसको सारे ऑब्नॉक्शियस और ओल्ड मैन कहते हैं। बहुत सारे लोग तो इसे मशवरा देते हैं कि तुम्हें खुदकुशी करनी चाहिए। ये ऑब्नॉक्शियस और स्ट्रेंज और सिनिसिज्म से ताल्लुक़ रखता है और ये कहता है जी मैं बस उसी में रहना चाहता हूँ जो सर्फ थे, जो ओल्ड, हम बॉन्डेड लेबर्स ही अच्छे थे और फैमिली के अंदर ही अच्छे थे। तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन रखता है। अच्छा, एक और है पिश्चिक, PISTCHIK, पिश्चिक। ये रशियन जो है ना, इनके नाम जो इस तरह के हैं थोड़े से, बस ये नोट कर लें, उसके बाद मैं आपको फिर स्टोरी सुनाता हूँ। ये जो पिश्चिक है ये लैंड ओनर है और ये मनी बारो करता है रेनवस्काय से। ये खुद भी बैंकरप्ट है, ये बिल्कुल दिवालिया हो चुका है। ये भी कैसे, मैडम रेनवस्काय जो है ये खुद ये मकरूज़ है और ये इसने खुद मॉर्टगेज जो है वो अदा करना है, तो ये इसने भी अदा करना है। ये रेनवस्काय से ही आके बारो करता है मनी। तो ये एक यानी बिल्कुल एक स्टायर और एक बिल्कुल एक आयरनी है इसके अंदर। उसके बाद शार्लट जो है अन्या की गवर्नर्स है, यानी सर्वेंट है किसकी, अन्या की, अरिस्टोक्रेटिक लेडी की जो बेटी है उसकी ये गवर्नर्स है। और ये बड़ी मुझसे एक मुज़हिका खेज़ और एक अम्यूज़मेंट और एक क्लोन टाइप और एक मुज़हिका खेज़ करैक्टर है, and all the time making some follies and amusement for other characters। तो दूसरे करैक्टर के लिए ये एक अम्यूज़मेंट है और एक अम्यूज़मेंट करती है, उनको खुश करती है और कुछ इस तरह की फॉलीज करती है जिसकी वजह से सारे करैक्टर जो लाफ करते हैं। तो ये है जी। उसके अलावा आगे करैक्टर आठवां करैक्टर जो मेन करैक्टर है हमारा, लिख लें येफी कॉडव। ये फैमिली क्लर्क है चेरी ऑर्चर्ड के अंदर, स्टेट के अंदर एक क्लर्क है। किसका क्लर्क है? लैंड लेडी जो है, अरिस्टोक्रेटिक जो लेडी है, कौन, रेनवस्काय का क्लर्क है स्टेट का। एंड ही आल्सो प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ इन द प्ले। ही इज़ अ होपलेस लवर। ये जो येपी कॉडव है ना, येपी कॉडव के स्पेलिंग लिख लें YEPHIKODOV, येफी कॉडव। येफी कॉडव जो है ये क्लर्क है और ये कॉमिक रिलीफ है। ये भी एक फॉलीज और इस तरह कंटेम्पलेटिव और बड़ा इमेजिनेटिव और बड़ा इस तरह का करैक्टर है। और ये किससे प्यार करता है? ये याशा, ये भी एक वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखता है। और ये याशा जो है, ये डुनाशा एक है, डुनाशा लिख लें। डुनाशा एक लेडी है, उससे ये प्यार करता है और उसी डुनाशा लेडी से याशा जो है एक और वर्किंग क्लास, एक और सर्वेंट है, वो भी प्यार करता है। तो वो इसकी तरफ अट्रैक्शन नहीं शो करती, याशा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो ये कोशिश करता है येफी कॉडव की ये बहुत अच्छी है और इसको प्रपोज भी करता है, लेकिन वो उसे खासी कामयाबी नहीं हासिल होती। तो ये एक ट्राइंगुलर एक लव क्रिएट होता है, जैसे येफी कॉडव और याशा और डुनाशा। याशा जो है ये फ्रांस के अंदर किसके साथ, रेनवस्काय के साथ रहा है। थोड़े से मॉडर्न थॉट्स हैं, ये लाइक नहीं करता रशिया को, बड़ा ओल्ड समझता है। कहता है कि जो रशियन की लाइफ है वो यानी जो रशियन की लाइफ बैकवर्ड है, जो फ्रांस वाले हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, उसने अच्छा माहौल देखा है। तो ये इससे ज़्यादा मुतासर होती है। डुनाशा जो है बड़ा अपने आप को रिफ़ाइन रखती है, एक वर्किंग क्लास है, लेडी है, काम करती है घर में, लेकिन अपने आप को बड़ा रिफ़ाइन करती है। और याशा जो है इससे इस्तेफ़ादा हासिल करता है और
इसको फिजिकली प्लेयर भी इससे हासिल करता है, सेक्सुअल रिलेशन और इस तरह की रिलेशन बिल्डअप कर लेता है इससे। तो यफी कोडव जो है ये कहता है कि मुझे भी, ये होपलेस लवर है, इसे कामयाबी हासिल नहीं होती। इतनी समझ आ गई? हाँ जी, याशा जो है ये मेल है, ये मेल सर्वेंट है, और मेल सर्वेंट जो है फ्रांस भी जाता है, वहाँ भी रहता है, रेनव स्काई के साथ अच्छा माहौल देखा है। तो ये डुनाशा जो है ये इससे मुतासर हो जाती है, और ये बड़ी इमोशनल और पैशनेट और बड़ी फिज़िकली अट्रैक्टिव एक लेडी है, और ये भी वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखती है। तो ये याशा जो है वो इसको, इसकी जो इनोसेंस को कैश करता है, और इसके साथ फ़िज़िकल रिलेशन और इस तरह फ़िज़िकल प्लेयर इससे हासिल करता है, और इस तरह की चीज़ें इसके साथ बिल्ड कर लेता है ताल्लुकात। जबकि यफी कोडव जो है वो इसके लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, लेकिन उसको कामयाबी नहीं हासिल होती। तो ये सारे करैक्टर ट्राइएंगुलर एक लव बन जाता है इसके अंदर, जो कि सर्वेंट्स के दरमियान है। तो ये सारे ही वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सम टाइम ये सोचता है, ये जो यफी कोडव है ये सोचता है कि मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए। वो जैसे मैंने कहा गन लोड तो होती है इसमें, लेकिन वो फायर नहीं होती, ये ऐसा प्ले है। तो लेकिन वो करते नहीं है सुसाइड। इसी तरह जो याशा जो है, ये याशा के मतलब लिख लें, याशा एक फ्रांस में रहा है, अच्छा माहौल देखा है, और रशियन लाइफ को बैकवर्ड अनसिविलाइज्ड कहता है, ठीक है। And he got soft corner in the heart of the female servant Dunasha, and he won Dunasha as well, and he enjoyed physical love with her. And the second thing is that he also recommends to Farz, जो कि old 87-year-old man है, फर्ज को कहता है कि तुम्हें तो सुसाइड कर लेनी चाहिए, तुम तो एक सिनिकल और एक अजीबो गरीब किस्म के एक obnoxious करेक्टर हो। अच्छा, डुनाशा लिख लें। डुनाशा इज़ अ मेड सर्वेंट ऑफ रेनवस्काइज एस्टेट्स, एंड शी फंक्शंस एज अ फिज़िकल प्लेयर फॉर याशा। वह याशा के लिए ये एज अ फिज़िकल प्लेयर का बायस बनती है, एंड शी वॉज यूज एज अ टूल, एंड ही वॉज वेरी क्रूअल एंड लाइक अ पर्सन। याशा इसको यूज़ करता है बस। ये जी 10 करैक्टर मैंने बड़े प्रोमिनेंट करैक्टर आपको बता दिए। अब ज़रा थीम लिख लें इसका। पहला जी थीम इसके अंदर है नेचर का है, और जो प्रोमिनेंट है थ्रू आउट द प्ले ये प्रोमिनेंट रहता है। चेरी ऑर्चर्ड को काटा जाना चाहिए, उसके ट्रीज़ को कट डाउन कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये थ्रू आउट द प्ले यही एक टसल रहती है। और अल्टीमेटली दे वर चॉप डाउन, तो उनको चॉप डाउन कर दिया जाता है, एंड दे वर कट डाउन, एंड व्हाट हैपेंड, द रेनवस्काई शी लॉस्ट द चेरी ऑर्चर्ड एंड शी वेंट बैक। अल्टीमेटली वो वापस चली जाती है। यानी नेचर का थीम जो है वो थ्रू आउट द प्ले आपको फंक्शन करता हुआ नज़र आएगा। अब करैक्टर मैंने आपको समझा दिए हैं, अब मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ आई वुड लाइक टू tell you summary and story of this play. As I told that he is a modern writer, and he is telling the new trend in story. He is bringing new trend in a story, and especially in tragedy. What kind of thing he is gonna bring over in a tragedy? He is bringing such kind of thing that whenever there is a problem, the protagonist and the writer, they are finding solution for the problem. Before that, when tragedy occurs, protagonist is died. There is a tragic flaw, and tragic flaw leads toward tragedy. It happens in a classical tragedy, but over here tragedy occurs, and that occurs through to social norms and social problems. It's totally due to social problem. And what kind of social problem in Anton Chekhov's play? There is a tragedy because the social order has changed. Once the people were aristocratic, landlord and feudal, and now they are going downwards. And what happened? Their cherry orchards is being auctioned. They are being destroyed. Their property, their land, their gardens, their orchards, everything is being auctioned. And who are going to buy? The serfs, middle class, lower middle class, and the bonded laborers, they are going to buy their land. And this is the social change. And when occurred? Alexander II.
Alexander II, when he came in power, he was a king. He changed the social structure of the Russian people. What happened? All the landlord, all the feudal, all the aristocratic, they were bound to sell their land. And how they bound to sell? Because there was a revolution. All the serfs, they were free. They were free to do their business. They got liberation. And worker and bonded workers and all, they're free to do their trade, their business, their everything, whatever they want, because they got liberations. And there was social changes in society. What happened? There is a lady, she shows three main, you could say, three main orders of house. There is a lady, and there is a, there are some characters. They show there are main three, you could say, levels. Family, please write it down. Family, friends, and servant. Here is one house. In house there are three main class, and one class belong to relatives, and second class friends, and third are the servants. Three main class of house is being shown in this play, and we see very clearly, we can see that there is a lady who is coming back from France. What happened? Abusive lover. He used her, he just robbed her, and she was robbed by that lover in France, because when her son was died and husband was died, she was very upset, and due to this tragedy she started finding solution. She went to France. Over there she changed some environment and atmosphere. She even fell in love with somebody, and over there the person she fell in love, he robbed, he just like a plunderer, he like a deceiver, abusive lover, and he just deceived her, and she is coming back. There are two servants, they are going over there, and Yasha, and there is another person. The two servants, they went there, and they, Charlotte and Yasha, they both went there to bring her back. They went to France in a way to bring her back. And now she's coming back, and when she was coming back, their friends, relatives, and other members, they are just waiting for her. Madame Renovskaya, she was coming back, and when she comes back, she comes to know that she's in debt. She has to pay the mortgage. And what happened? She has to pay this debt. Upon this, she get suggestion from different members of house, and as well as some friends. They come over there. The friend is Lopakin. Lopakin was once the serf, and now he is developed one. He has set up his business and doing many business like trade and other merchant like activity. And he recommended her, you should just make the cottage of this cherry orchard, and after that you can sell the different cottages. You can put it on rent, and like that you can get a lot of money, and after that you can pay the mortgage. So that's our first recommendation. But she said there is a brother of the Gave. Please write one more character. Gave was a brother who was a drunkard. He was a brother of the Renovskaya, and who was a drunkard, and he was lazy, and he's about a very aged one, but he's looking like just like eating lollipop kind of things, and he's just like a infant like activity he's doing. Not a serious character. Her brothers, Renovskaya's brother, Gave. So Gave and Renovskaya both disliked this Lopakin's idea that we should not sell it, or we should not cut the trees or the cherry orchards tree like that. We are not going to cut it down. Rather, we'll find another solution. They started finding solution. And how they are going to find solution? She arranged a bar. She just arranged a bar like, you could say, you know that when all the English people, they come together, they dance and watch and dates and like that, it is called bar activity. Bar mean a kind of special place where they sing together, dance together, and eat and drink. She arranged bar, and a lot of people are invited, and she gonna find the solution.
She's not taking it seriously. Rather, she's going to dance. She's even eating, dancing, and like that activities. Even August has come because the debt must be paid, mortgage must be paid till August. August has reached. What happened? She could not find any solution. Rather, she's just she is giving a deaf ear to these problems. What happened? At last, Lopakin purchased this land and he brought some worker as well. So all the worker came and they cut down all the cherry orchards, trees, and like then chop it down. Upon this, the lady Renovskaya, she planned that she'll come back, she'll go back to France, and over there she'll meet her abusive lover because he was ill and he was also calling. He sent many letters to Renovskaya that he made mistakes and now she could come back and we want to restart our relationship. And now she started. She thought that she would go back to her previous lover and she will build relation with her, and she left the cherry orchard in a tragedy because that was chopped down by the Lopakin. Lopakin purchased and Lopakin just cut down all the trees, and that's how story ended. It is a kind of tragedy where Renovskaya tried her level best, but she tried another way. She could not find a serious solution. As I told that somebody told that you should get married, and others say that your pen is very beautiful. So this kind of behavior she shows, she could not manage. And ultimately, cherry orchard was auctioned and it was purchased by just like Surf Lopakin. Lopakin purchased and he chopped down all the tree and divided into the cottage. And ultimately, she went to the France. Over there, she met with her abusive lover, previous lover, like this. So that's how story ended. Anton Chekhov's showed new trend in tragedy. Like you know that before that tragedy was just like a classical tragedy. One hero and the hero is the protagonist one. All the play suffering and ultimately die. Over here, hero or protagonist find solution. This was the difference between classical and modern tragedy. It is a classical and modern tragedy like this. This is a modern tragedy in which you can say the character are finding solution. So that's how story ended. If you have any questions related to this, you can ask if you wish. Anton Chekhov, and regarding this play, if you've got a question. I have discussed, listen to me. I have discussed each and every character one by one. What was the relation of Barbara with the other character? I discussed even triangular love among us, the servant, and everything I discussed. I have told you the main story. Now you can understand very easily because I have told you each and everything, first of all in the form of characterization, and second I have told you the story how tragedy occurred in this, because it is shown as a tragedy. If you see it just like a comedy, in comedy you know that very serious issue is going over there. Auction is being taken place over there. What is happening over there? And the tragedy kind of thing happening, and they are arranging bar, dance, dating, and other activities. I told you. So this is the difference. You could say over here it can be known as a tragedy as well as a comedy. But once you watch it, it looks tragedy. But whenever you read it, it will look like a tragedy. But once you watch, you will feel that it is a comedy. जब हम इसको वॉच करते हैं तो ये कॉमेडी लगता है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये ट्रेजेडी लगता है. अगर उनकी एक्टिविटीज़ को देखें तो वो ऐसे आपको फील होगा कि ये एक कॉमेडी है. और राइटर भी कहता है मैंने कॉमेडी लिखी है, लेकिन डायरेक्टर कहता है नहीं यार मुझे तो ये ट्रेजेडी लगती है, मैं इसे ट्रेजेडी डायरेक्ट करूँगा. उसने ट्रेजेडी इसको डायरेक्ट किया था फर्स्ट टाइम. I think that it is a tragedy as well as comedy because the life consists on two things,
comedy as well as tragedy. So he's a modern writer. He tried to show life in two ways, comedy as well as tragedy. लाइफ के अंदर ट्रेजिडी भी है, कॉमेडी भी है, जैसे शेक्सपियर शो करता है, कॉमेडी भी, ट्रेजी कॉमेडी उसने लिखा है। तो ये ट्रेजी कॉमेडी दोनों ही हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि करैक्टर जो हैं वो आपको बड़े कॉमिक लगेंगे, वो बहुत फनी लगेंगे बहुत सारे। जैसे वो रेनफ्स का है तो वो सीरियस इशू को नहीं लेती, वो डेट्स पे चली जाती है, और जो दूसरे करैक्टर्स हैं वो अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। जो याशा है वो एक सर्वेंट है और उसने एक ट्रायंगुलर लव उसने एक क्रिएट करने की कोशिश की है कि वो येफी कोडव जो है वो भी उसके साथ ही प्यार कर रहा है और दुनैशा जो है वो दोनों के साथ फ्लर्ट कर रही है। तो ये भी एक कॉमिक एलिमेंट बनता है। फिर उसके बाद फ़र्ज़ जो है वो सारी उम्र रहना ही उसमें चाहता है ओल्ड सिचुएशन में। और इस तरह के जो करैक्टर्स हैं, करैक्टर मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं, और बाकी मैंने आपको ओवरऑल स्टोरी बता दी है कि ये ट्रेजिडी अक्कर कैसे होती है। ये इसलिए होती है कि वो डिले करती है, वो सोचती है बस ऐसे ही मैं कर लूँगी, कभी किसको बुला लिया कभी किसको बुला लिया, लेकिन वो सॉल्यूशन जो प्रॉपर जो फाइंड नहीं कर पाती, वो डील नहीं कर पाती। वो जो चेंजिंग आ गया, सोशल चेंज आ गया, वो उसको ना डील नहीं कर पा रही। वो अरिस्टोक्रेटिक है तो इवन कि वो खुद एक कर्जे में डूबी हुई है तो वो फिर आगे कर्जा दे देती है। एक और जो उनकी तरह का एक होता है उसको कर्जा दे देती है, वो एक और कर्जे में डूबा हुआ तो उसको कर्जा दे देती है। तो ये भी एक कॉमिक एलिमेंट ही है। इट्स आल्सो कॉमिक वन दैट यू आर योर सेल्फ इन डेट एंड यू आर गिविंग मनी टू समबॉडी, सो इट इज़ आल्सो अ कॉमिक वन। ये इसकी सेटिंग जो है वो 5-6 मंथ में मैंने बताया 4-5 मंथ में हुई है, और ये उस रशिया के अंदर ही हुई है, क्योंकि रशिया का ही ये सारा एरिया उसने दिखाया, चेरी ऑर्चर्ड और फ्रांस से वापस आती है रशिया का सारा दिखाया है। तो ये रशिया में सेटिंग हुई है, रशिया के किसी बैकवर्ड इलाके को वो शो करता है। बेसिकली ना जो इलाका था, जितने भी बैकवर्ड इलाके थे, अलेक्जेंडर टू ने कहा था जितने भी बैकवर्ड इलाके हैं उनको डेवलप करके उनकी जगह पे घर बना दिए जाएं। अब एक मिसाल है कि अगर 70 मील के रकबे पे अगर आपने एक बाग ही बनाया हुआ है तो वो बाग कितना है आप देख लें, उसका टैक्स आपने देना है। तो अगर आप उसका टैक्स ही दे नहीं पा रहे हो, वो आपको दे भी कुछ नहीं रहा। कभी चेरी ऑर्चर्ड का जैम वगैरह और इस तरह की चीज़ें बनती थी, अब लोग वो भी नहीं खाते, उसका वो भी नहीं बिक रहा। तो वो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी इकट्ठी होकर उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती हैं। तो वो सारा एक खुद डेट में जा रहा होता है, तो उसको फिर ऑन कर लेती है स्टेट जो होती है ना। वो जब बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर डेट चढ़ जाए तो उसको ऑन कर लेती है स्टेट। तो स्टेट जिसको मर्जी बेच दे। तो स्टेट ने फिर उन सर्व्स जो थे, वर्कर थे, उन्होंने ख़रीद लिया उसको। ख़रीद के अब वो वर्कर क्या कहते हैं, वो लोपाकिन जैसे पहले कहता है इसके कॉटेज बना दो, यहाँ पे वो जैसे ना बहुत सारे घर बना दो इसमें, ये अब इतने मीलों में ये फैला हुआ ऑर्चर्ड, तो अब इसको काट के यहाँ पे दरख्त काट के क्या बना दो, घर बना दो। घर बनाने के बाद कहता है किराए पे दे दो, वो आपको सारा किराया आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन वो नहीं मानती, वो कोई सोल्यूशन, वो कहती मैं लोगों से कर्जा ले लूँगी। वो पार्टी अरेंज करती है, बाल अरेंज करती है, पब अरेंज करती है, डेट पे चली जाती है लोगों के साथ। तो ओवरऑल क्या होता है, वो फिर भी कामयाब नहीं होती, कोई उसे नहीं देता कर्जा। तो आखिरकार वो ऑक्शन, अगस्त में वैसे ही ऑक्शन होना था, उसने वो ऑक्शन हो जाती है और वो उसको लोपाकिन ही ख़रीद लेता है जो उनका सर्व होता है। उसको ख़रीद के वो पहले उसके वर्कर साथ ही ले आता है, और पहला जो एक्स जो है ना वो चलाते हैं। तो वहाँ पे फिर वो सोचती है कि नो आई विल गो बैक टू माई प्रीवियस लवर एंड आई विल लीव दिस प्लेस। और बेसिकली ये ट्रेजिडी का सोल्यूशन फाइंड किया जा रहा है, चेंजिंग लाई जा रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजिंग लाई जा रही है। देखिए ना, आजकल भी आपने मॉडर्न देखा होगा, किसी के साथ ट्रेजिडी हो जाए तो कहते हैं यार तुम हवा चेंज करो, यहाँ से थोड़ा सा ना इस्लामाबाद चले जाओ, मरी चले जाओ 4 दिन। तो सेम वे शी स्टार्टेड फाइंडिंग सोल्यूशन। तो वो सोल्यूशन फाइंड करती है कि मैं यहाँ से जाती हूँ, ये जो मेरे ऊपर परेशानी आई है मैं उसको कंट्रोल करूँगी ऐसे। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग, शी इज़ फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ द ट्रेजिडी। तो रशिया में ये सेटिंग हुई है इस प्ले की। बेसिकली रशिया के अंदर जो आपको दिखाया गया है चेरी ऑर्चर्ड, इट वाज इन रशिया, somewhere in Russia, and it shows the backward area in a sense Alexander the Great
Alexander II, who was a king, he ordered that all the Russia's backward area of Russia that must be developed. जितना भी बैकवर्ड एरिया रशिया का उसको डेवलप कर दो, उसके अंदर घर बना दो. जैसे इमरान खान ने अभी ऑर्डर दिया कि घर बना दो गरीबों को. अब बहुत सारी जो लैंड है उस पर क्या उसमें घर बन जाएंगे, बनेंगे ना. तो इसी तरह उसने भी ऑर्डर दिया था उस वक्त के जो जितने भी सर्व हैं बाउंडेड जो वर्कर हैं उनको सबको आज़ाद कर दिया जाए, वो अपना कारोबार करें. और जो जितने भी अरिस्टोक्रेटिक्स हैं उनके पास इतना जितना रकबा है उसके ऊपर इतना इतना टैक्स लगा दिया. अब वो टैक्स पे नहीं कर रहे तो उनको खुद ब खुद क्या हो जाएगा, वो जो इतनी बड़ी उन्होंने अपना एक रियासत बनाई हुई थी वो सारा ऑक्शन में चला जाएगा. या तो उसको स्टेट ओन कर लेगी या कोई बैंक कर लेगा या फिर ऑक्शन हो जाएगा और वो उसको कोई भी खरीद लेगा. सो दैट इज़ हो दैट वाज चेंज द चेंजिंग क्लास ऑफ रशिया, द मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास and upper class both are in just like in revolutions, a kind of revolutions. They are in a state of revolutions and they are suffering. And mostly upper class and you could say like feudals and aristocratic class, they were suffering because they've got a lot of properties and they have to pay heavy tax as well, and state is going to own them. स्टेट उनको ओन कर रही है, स्टेट उनके ऊपर टैक्सेस लगा रही है. स्टेट ने उनको कह दिया है कि इन एरियाज़ को डेवलप कर दो जो इतना एरिया को इन्होंने कैप्चर किया हुआ है. इवन के लोपाखिन जो है वो भी उसको जैसे मैंने कहा सजेस्ट भी करता है लेकिन वो उसको उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई और अल्टीमेटली इट वाज ऑक्शन एंड शी लेफ्ट द प्लेस एंड वेंट टू फ्रांस. दैट्स हाउ स्टोरी एंडेड. तो इसके नाइनटीन 1904 में उसकी डेथ हुई है. किस 1816 में ये जो है इसकी बर्थ हुई है. किसकी? उसकी एंटन शेकोव की. मैंने आपको लिखवाई थी. हाँ जी सर जी, मैं बस कंफर्म कर रही हूँ. 17 जैन 1860 यही है ना? हाँ जी बिल्कुल. जनवरी 17 1860 और जुलाई 1904 जर्मनी में डेथ हुई है. जब इसकी ये बीमार होते हैं बहुत ज़्यादा तो फिर ये जर्मनी जाते हैं, जर्मनी में अपना इलाज करवाएंगे लेकिन वहाँ पे भी ये रिकवर नहीं कर पाते आप अपने आप को. और अल्टीमेटली ही डाइड 1904. और 1904 में इन्होंने चेरी ऑर्चर्ड लिखा है. और उस दौरान चेरी ऑर्चर्ड जो है सबसे ज़्यादा इनकी डेथ के बाद सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ है, जो जिसको ज़्यादा इट्स ए ग्रेट प्ले कंसीडर होता है वो चेरी ऑर्चर्ड ही है. इसके अंदर उसने एक न्यू चीज़ क्रिएट की है, नई चीज़ दिखाई है और उसको ट्रेजिडी भी ऐसे कॉमेडी भी प्ले किया है. पूरी दुनिया में इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और ट्रांसलेट करने के बाद पूरी दुनिया में इसको चलाया गया एज अ थिएटर के ऊपर, रशिया में भी और उस तरह इंग्लैंड और डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. नहीं ये वैसे ही है, ये अलेक्जेंडर और है. अलेक्जेंडर किसी का भी नाम हो सकता है. तो ये वहाँ पे कोई पार्टी है तो उसका एक किंग है. ये अलेक्जेंडर 2 है. ये अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो तो रोमन ग्रीक्स का था, ग्रीक्स से ताल्लुक रखता है, तो बहुत पुराना था. अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो तो ताल्लुक रखता है से क्या नाम है उसका, अरिस्टोटल के दौर से. अरिस्टोटल का आपको पता है, अरिस्टोटल और प्लेटो जो हैं, अरिस्टोटल किस दौर के हैं? वो तो हज़रत मूसा के वक़्त के हैं. तो ये तो बहुत पुराने ज़माने में चले जाएंगे हम. ठीक है. तो ये वो मैं पढ़ा था ये आई थिंक सारी था कि दैट वाज हिस्ट्री में मैंने पढ़ा था वो 40 2 थी और हेनरी 1 और हेनरी 2 और हेनरी 3. तो सर ये एजेस में इनका कोई एक वर्क है या फिर ये रेंज थी इनकी उस वक्त जो एज चल रही थी तो तब के इनके नाम थे कि ये रोमांटिसिज्म में जो था वो ये था. और वो जो हम देखो ये ना मेरी बात सुने, ये किंग हैं और ये जो जितनी भी क्वींस हैं जिनके एरिया के अंदर लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है ना वो उस नाम से जाने जाते हैं. जैसे विक्टोरिया जो थी, विक्टोरिया की एज के अंदर या उसके रियन के दौर के अंदर जब उसने उसको संभाला और जब उसने छोड़ा, जब उसकी डेथ हुई
तो उस दौरान जो उसने लिटरेचर को फाइनेंस किया या थिएटर को सपोर्ट किया, या उस दौर में जितना लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, तो उसके नाम से उसका नाम रख दिया विक्टोरियन एज, कि उस दौर में थिएटर को कितनी उसने सपोर्ट की, कितना कुछ। अब मेडिवल एज में राइटर्स को कुछ नहीं दिया जाता था, राइटर को कोई नाम नहीं मिलता था, राइटर को कोई फाइनेंस नहीं करता था। आपको पता है कि जो हमारे राइटर थे, फीस जलंधरी और इस तरह के जो बड़े बड़े राइटर थे, उन बेचारों को क्या कुछ मिला है किंग्स ने, और हमारे जो यहाँ के बादशाह थे उन्होंने क्या दिया? वो बेचारे, उनकी औलाद आज भी धक्के खा रही है। तो इसी तरह ये जो लोग थे ना, ये लोग सपोर्ट करते थे उनको। ये जैसे विक्टोरिया थी, ये खुद बड़ी लिटरेरी थी, तो ये इस तरह इसने सपोर्ट किया, या जितने और राइटर्स थे वो भी सपोर्ट करते थे इनको। तो उन लोगों ने बड़ा एक फेम हासिल किया, इस वजह से उनका नाम है। और आप देखें ज़रा, इंग्लिश लिटरेचर जो है वो आई थिंक सबसे आगे है इसमें। आप अगर देखें तो उन्होंने ज़्यादा वर्क किया अपने। तो उर्दू में तो आज भी आप एम ए उर्दू करें, उसमें सारे राइटर आपको यही पढ़ने पड़ेंगे। आप पढ़ के देख लें, यही राइटर पढ़ने पड़ेंगे आपको। हमारा तो इतना इंग्लिश के पढ़ने पड़ते हैं, ये क्लासिकल लिटरेचर यही पढ़ने पड़ेंगे, वर्ड्सवर्थ और यही चीज़ें। लेकिन वहाँ पे उर्दू में होंगे, आपके हमने उर्दू का लिटरेचर पढ़ना है। हमने उर्दू मतलब इंग्लिश का लिटरेचर हम पढ़ते हैं क्योंकि ब्रिटेन की लैंग्वेज थी, वहाँ पे जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, हमने उर्दू का लिटरेचर पढ़ना है। इनके उर्दू बड़े उर्दू में कितने राइटर हैं आपके? किसको पढ़ेंगे आप ड्रामा पढ़ोगे तो ड्रामा यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो वहाँ से पढ़ने पड़ेंगे। फिर अगर आप फिलोसफी पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिटिसिज्म पढ़ते हो उसके अंदर, तो क्रिटिसिज्म जब आप उर्दू में पढ़ोगे तो फिर आपको अरिस्टोटल, प्लेटो और वहाँ पे ले जाएंगे, स्पा के ऊपर, प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल पे ले जाएंगे। वही आप इंग्लिश में पढ़ते हैं वहीं उधर पढ़ने पड़ेंगे भाई, ठीक है। स्टाइलिस्टिक पढ़ोगे तो स्टाइलिस्टिक की डेफिनेशन जो इंग्लिश लोगों ने दी होगी, पहले ग्रीक्स, रोमन ने, उसके बाद इंग्लिश रोमन में आई, रोमन से इंग्लिश में आई, तो उसके बाद स्टाइलिस्टिक भी उधर ही आ जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, आप सारे यही तो मैंने कहा कि इंग्लिश, आपको आशा, मेरी बात सुनो, आशा कर रही है मेरी वाइफ एमए उर्दू, तो वो कहती है जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हो यही मैं पढ़ रही हूँ, बस वो उर्दू में कहती, वो उर्दू में, आप इंग्लिश में कहती। वो मुझे कहती है कि मैं इंग्लिश कर लेती तो आसान था मेरे लिए, मैं आपसे चलो हेल्प ले लेती। घर में बैठ के पढ़ लेती, तो ये तो मुफ्त का टीचर मिल जाता उसको। यही मैं कह रही थी, अच्छा खासा मुफ्त का टीचर मिल जाना था, और फिर नोट्स और हर चीज जो आप करके बंदे को मैसेज अच्छे से प्रोवाइड करते हुए पता होता है कि इनका मैंने बताया था। लेकिन आपको पता है कि आजकल मोस्टली जो लोग हैं ना, वो ये सोचते हैं कि इंग्लिश बड़ी मुश्किल है। मैं कहता हूँ एमए उर्दू मुश्किल है। आप ज़रा आप देखें उसका तो, और ये इसके पढ़ने नहीं आते और बड़े मुश्किल है लफ्ज़। और इंग्लिश में इजी है, आपने तो किया हुआ है एमए इंग्लिश, आपको पता है कि ये एमए इंग्लिश से इजी है। फिर और इसके अंदर मैं पहले बता रहा हूँ कि देखें आप 14th सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक लोगों को पढ़ते हैं, उनके माइंड्स को, नेगेटिव, पॉजिटिव कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर्स, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, ये सारे कैरेक्टर्स को आप पढ़ते हो। फिर प्लॉट क्या होता है, स्टोरी क्या होती है, ठीक है। फिर पोएम्स पढ़ते हो, ऑड्स क्या होती है, पोएम क्या होती है, एलिजी क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने भी, आयम्पिक पेंटामीटर क्या है, ठीक है, ट्रोके क्या है, और एनाफिस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। और यही चीज़ें आपको उर्दू में पढ़नी पड़ेंगी। वहाँ पे भी एक्सेंटिंग और नॉन एक्सेंटिंग, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी हैं, वो सारी उर्दू में होगी। बस फ़र्क क्या है? सोनट जो क्या है, नज़म, ये सोनट आप देखें, गज़ल, ये सोनट अगर देखें तो उसमें भी 14 मिसरे ही हैं। लेकिन अब देखें जो शेक्सपियर ने सोनट, पेट्रार्कन जो सोनट, इटालियन सोनट है, ठीक है, उन्होंने क्या एक फॉर्मेट बनाया कि ऊपर उनके क्या होता है 6 लाइन और नीचे 8 लाइन। सिस्टेट
6 लाइन और नीचे क्या ऑक्टेव्स। ऑक्टेव क्या होती है, ये एक रोमन, ये ग्रीक है, एक रोमन जो जैसे वो होते हैं ना, उनकी जो होती है गिनती वगैरह, उसी तरह की है सिस सेट। ऊपर 6 लाइनों में इंट्रोडक्शन देता है राइटर, और नीचे ऑक्टेव जो है उसमें सोल्यूशन बताता है। अब उसको उन्होंने उसकी जो राइमिंग स्कीम है चेंज कर दी शेक्सपियर ने, बस इतना सा डिफरेंस है। उसके बाद आगे थोड़ा सा आ जाए तो आगे फिर कीट्स ने जो लिखा उसने थोड़ा सा और डिफरेंट कर दिया उसको। कीट्स ने ओड्स की फॉर्म में लिख दिया। ओड में एक स्पेशल टॉपिक ले लिया जाता है, उसके ऊपर डिस्क्राइब कर दें, आप जितनी मर्जी बना लें, जैसे मर्जी उसकी चेंजिंग कर लें स्टाइल। ओड्स आपने कविता सुनी होगी, इंडिया वाले पढ़ते हैं, और हमारे इधर नज़में पढ़ते हैं ना लोग, गा गा के तराने पढ़ते हैं जिहाद वाले, वो सारी ओड्स हैं, फ्री वर्स में लिखी जाती, जितनी मर्जी लंबी लिख लें। और एपिक जो होती है वो वैसे बुक्स पे मुश्तमिल होती है। ये ऐसी चीज़ें ना, ये मोटी मोटी चीज़ें याद रखा जाए ताकि आपको वहाँ पे भी आगे एग्जाम में आपकी हेल्प करे। आई होप कि आज का लेक्चर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और आज हमने करेक्टराइजेशन देखी, हमने चेरी ऑर्चर्ड को देखा, और उसके एंटन चेखव के, अगर एंटन चेखव की कोई स्टोरी आपको पढ़नी पड़े तो आप फ़ौरन पढ़ लोगे कि एंटन चेखव ठीक है, ये राइटर है, इसकी ये स्टोरी, ये ऐसा लिखता है, इसका स्टाइल ऐसा है, तो फ़ौरन समझ आ जाए। कॉमिक लिखता है ज़्यादा, ये इसने जो लिखा है ये कहता है ये भी मेरा कॉमिक ही था, पता नहीं लोगों ने क्यों ट्रेजेडी बना दी है। ये बड़ा, मैंने इसके बारे में बड़ा डिटेल स्टडी किया हुआ। तो ये बेचारा कहता है मैंने तो कॉमेडी लिखा था, ये लोगों ने इसे पता नहीं ट्रेजेडी क्यों बना दी है, मेरे कुछ दिखाया ही उन्होंने इस तरह।